हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिराज फ्रॉम कार जासूस। कैसे हो आप लोग? क्या है आपका हालचाल? आई होप बढ़िया ही होगा। हमारा हालचाल बहुत बढ़िया है बिकॉज आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने वाले हैं। प्लस हम लोग आज हेक्टर प्लस का रिव्यू कर रहे हैं। यस, इन ऑल इट्स ग्लोरी विद स्टारी स्काई ब्लू। हमारे पीछे खड़ी है हेक्टर प्लस, द ऑल न्यू हेक्टर प्लस। एंड ये प्लस जो है उसका मतलब क्या है, क्या डिफरेंसेस है हेक्टर एंड हेक्टर प्लस में, वो आज हम देखने वाले हैं इस रिव्यू में। This massive looking beast behind me is going to change your perception about car buying. Let's see how we roll this. So let's talk about the exteriors of Hector. Hector and Hector Plus दोनों के exteriors आपको बहुत similar दिख जाएंगे because dimensions में height, width and wheelbase ये तीनों चीजें जो है वो दोनों गाड़ियों में सेम है। सिर्फ जो एक 65 mm का लेंथ इंक्रीमेंट है दैट इज ड्यू टू द रियर बम्पर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट प्रोफाइलिंग। द फ्रंट प्रोफाइलिंग ऑफ द कार यू कैन सी काफी ज्यादा एक बड़ा डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस आपको दिख जाएगा वो है ये बड़ा सा ग्रिल। यस, दिस बिग यूनिक ग्रिल इज क्वाइट बिगर देन द हेक्टर एंड यहाँ पे बीच में आपको क्रोम ब्रांडिंग मिल जाती है MG की। सो यस, दिस हैज इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर एंड ये डेफिनेटली एक फुटप्रिंट लगा देता है कार को कि नहीं, आई एम बिगर, आई एम बेटर, आई एम बैडर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द LED DRLs। LED DRLs के साथ ही आपको साइड इंडिकेटर्स मिल जाते थे, बट अब यहाँ पे इन हेक्टर प्लस यू गेट द साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे बिटवीन द हेडलैम्प्स एंड द फॉग लैम्प्स। You can also see that the headlamps and the fog lamps have been redesigned and this is the facelift bumper which looks really nice and ये पूरा combination जो है वो एक unique front profiling देता है गाड़ी को and definitely adds to its premiumness. So this is about the front profile. Let's move on to the side profile of the car. So here we are with side profile of Hector Plus. The first thing that you notice in the side profile is the wheels. Yes, Hector Plus has 17-inch alloy wheels, but frankly speaking, with its muscular design, ये थोड़ा underweighing लगते हैं. It could have been an inch bigger on the rim and this would have been a perfect match, but they are not bad. They are good. They are nice, proportionate. Then second चीज जो आप देखेंगे या notice करेंगे वो है ये electronically attached ORVMs. Yes, electric ORVMs है Hector Plus के साथ. So they automatically open and closed on requirement. So manual नहीं है. That is nice. एक और चीज, these ORVMs of Hector Plus come with a defogger. That is a brilliant attribute. ये defogger जो है वो frosty या rainy season में जब आपके ORVMs unclear हो जाते हैं due to natural condensation, तो ये defogger आपको काम लगता है so that you get the clear visibility of the side view mirrors. One more thing is the roof rails. They give a nice touch to the overall side profile of Hector Plus. So let's talk about the back profile of MG Hector Plus. The tailgate is redesigned and tail lamp जो है वो Hector के comparison में काफी अलग है. Also side indicators are directional multi-layered LED indicators जो काफी cool लगते हैं. दोनों लाइट्स को जोड़ने वाली जो रिफ्लेक्टर स्ट्रिप थी वो भी यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको एंड बीच में MG का बैजिंग दिख जाएगा which provides with a quite cool look. Also you will see यहाँ पे आपको नीचे दो फेक एग्जॉस्ट दिख जाते हैं. रियल एग्जॉस्ट उसके नीचे है. फेक एग्जॉस्ट आर जस्ट फॉर द सिमेट्री पर्पसेस ऑफ द डिजाइन. Also you will see parking sensors below the fake exhausts. A cool feature about MG Hector Plus is the swipe to open tailgate. If you swipe your leg across the bumper, it will open the tailgate automatically. This provides convenience. अगर आपके हाथ में सामान है तो आप सिर्फ स्वाइप से ऑटोमेटिकली tailgate ओपन कर सकते हैं. And after opening the tailgate, you will see if all 7 seats are pulled up, the boot space is 155 liters. So guys, we are in the cabin of MG Hector Plus and as you can see, सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आपको ड्यूल टोन ब्लैक एंड ब्राउन टैन का जो फीचर मिलता है which looks really premium। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। ये अपहोल्स्ट्री जो है वो काफी प्रीमियम फील देती है। Also you could see there are some driver touch points which are soft, which is nice. The steering is nice। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेंटर में ड्राइवर टच पॉइंट्स है जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। These touch points are quite soft points, but यहाँ पे कुछ जगहों पे like
हार्ड प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है, बट ऑल इन ऑल ये सॉफ्ट टच पॉइंट्स देने की वजह से आई फील क्वाइट कंफर्टेबल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सीट्स आर अ बिट कर्व्ड. As you know, my height is 6 feet and I'm quite bulky, but still I'm very comfortable. ये सीट जो है वो मैक्सिमम पीछे की गई नहीं है. बट अगर एडजस्टमेंट्स की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट्स आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक पावर एडजस्टेबल सीट्स. दिस इज अ 6-way पावर एडजस्टेबल सीट्स which goes back, which goes down, forward, back, forward, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको अप एंड डाउन वाला फीचर ये रेक्लाइन का मिल जाएगा. सो दिस इज अ 6-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट जो ड्राइवर को मिलती है. ऑल्सो यू गेट अ को पैसेंजर सीट विच इज 4-way एडजस्टेबल. एंड एज यू कैन सी, इफ यू नीड सम प्राइवेसी, यू हैव द सन ब्लाइंड विच इज एन एक्स्ट्रा एक्सेसरी. आपको सन ब्लाइंड जो है वो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में आएगा, हेक्टर आपको नहीं देगी. उसी के साथ साथ यू कैन सी दैट हियर द साउंड सिस्टम इज फ्रॉम इन्फिनिटी. इट गिव्स यू 10 स्पीकर सराउंड सिस्टम. ऑल्सो यहाँ पे सेंटर में जो सबसे आई कैची फीचर है वो है ये 10.4 इंच का मैसिव टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विच कम्स विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले. एज यू कैन सी यहाँ पे द टच इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव. हेक्टर से हेक्टर प्लस में इन्होंने ये टच को ज्यादा रिफाइनमेंट दिया है. सो यस, इट लुक्स नाइस, इट इज गुड. And there are a lot of audio interaction features इस कार में. जैसे कि अगर मैं I'm going to start the car now. सबसे पहले ये कार स्टार्ट करते ही the main thing that you notice is the dynamic instrument cluster. यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है जो काफी ऑटोमेटिक है. Now let's talk about the revving up of the car. ये साउंड है, this is the rev sound. It is quite smooth, quite refined. हाँ, अब अगर यहाँ पे आप देखें तो this car is quite audio connected. This car comes with internet inside, जैसे आपने पीछे ब्रांडिंग पे देखा हो. This car comes with a 4G SIM which is upgradable to 5G जब systems develop हो जाएंगे. ऑल्सो यहाँ पे आपको 3 साल का इंटरनेट मिलता है एंड उसी के साथ साथ आपको गाना.com की ऐप जो है वो आपको इसके साथ साथ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में फ्री मिलती है. सो दैट इज फॉर योर इन कार पार्टी साउंड्स. ऑल्सो आपको मिलेगा एक जोरदार वॉइस कमांड सिस्टम. आपकी गाड़ी जो है उसके वॉइस कमांड्स काफी रिस्पॉन्सिव है. आपको 27 अराउंड वॉइस कमांड्स मिलते हैं इस कार में. सो लेट्स चेक सम ऑफ देम आउट. तो सबसे पहले बिफोर जस्ट गोइंग टू द वॉइस कमांड्स, लेट्स सी दैट यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस जो है वो भी काफी अच्छे से दी गई है. यहाँ पे ड्राइवर्स साइड पे यू कैन सी 1 लीटर बॉटल. ऑल्सो अ स्मॉल अम्ब्रेला कैन बी स्टोर्ड इनसाइड. यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं कि हैंड रेस्ट के नीचे भी एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है. दोनों डोर्स के साइड स्टोरेज स्पेसेस है. यहाँ पे यू कुड सी दैट देयर आर चार्जिंग सिस्टम्स. आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो यहाँ पे. एंड अगर आप ग्लव बॉक्स में देखें तो मैं नहीं कहूंगा कि ग्लव बॉक्स काफी रूमी है, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स है यहाँ पे. बट ग्लव बॉक्स इज क्वाइट नाइस. सो स्टोरेज स्पेसेस की कमी नहीं है यहाँ पे. यू कैन सी हियर आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं फॉर द ड्राइवर एज वेल एज द को पैसेंजर विथ लाइट्स. यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं दोनों ड्राइवर एज वेल एज को पैसेंजर के लिए. एंड अगर फीचर्स की बात करें तो MG इज नोन फॉर इट्स फीचर्स. MG इज ओवर फीचर फ्रेंडली कार. अगर आप सिर्फ एक व्यू यहाँ पे देखेंगे with its steering as well as the control panel here, you will see that it is just short of a plane. Yes, there are too many features and you will require some time with it to get your hands used to these feature rich cars. MG का जो main USP मुझे लगता है वो है voice commands. It has quite refinement with its AI. तो यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया सा AI मिलता है. It also has this new chit chat feature and a range of voice commands that you can operate on. Also, let's talk about the talk of the town, the MG sunroof. जी हाँ, MG ने sunroof में एक benchmark set कर दिया है. MG offers a panoramic sunroof which opens with a voice command. So let's try it one now. Hello MG. I'm here. Open sunroof.
So आप देख सकते हैं, this is the sunroof and it is open. I'm in oneness with the sky. आप nature enjoy करना चाहते हैं, आप अपनी ride enjoy करना चाहते हैं, तो इसका sunroof ऐसे voice command से खुल जाएगा. Also with voice command it closes down. Hello MG, I'm listening. close the sunroof. So did you just see the smooth transition that is happening? जी हाँ, ये बहुत smooth transition हो जाता है. So I feel really nice sitting out here. And also this sunroof goes all the way back. It is a panoramic sunroof. तो आप अगर पीछे के सीट्स पे मिडिल रो में हो, तो भी कैप्टन सीट्स पे आपको एक बहुत प्रीमियम फील देती है ये कार. एंड आई गेस यहाँ पे बेसिक बटन्स है, यहाँ पे नथिंग न्यू. But this is, I guess, pretty much that MG offers, which is new. So guys, we are in the middle row of MG Hector. Now, as you can see, these seats are not fully pulled back, but मुझे काफी ज़्यादा space यहाँ पे available है. जिनको ना पता हो, I am 6 feet and above 100 kilograms, but still मुझे ये काफी roomy, काफी spacious लगती है. The seats also can be found with a curvature, जो आपको एक और ज़्यादा extended back support and space देता है. बट एक चीज जो आप थोड़ी देर बैठने के बाद नोटिस करोगे, वो ये है कि इसकी सीट्स जो है मिडिल रो की, वो थोड़ी डाउनवर्ड्स है. तो दे हैव ट्राइड पार्शियली टू गिव द अंडर थाई सपोर्ट, बट फॉर समवन ऑफ माय हाइट अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट इनफ. तो एक हल्का सा अंडर थाई सपोर्ट, बट नहीं है, ऐसा नहीं है. There is an under thigh support. For an average Indian height, you find good under thigh support. Very comfortable, very roomy. Yes, यहाँ पे आपका sunroof जो है वो यहाँ तक पूरा panoramic sunroof extend होता है. तो yes, middle row passengers, especially with this 6-seater version of MG Hector Plus, you get captain seats. Oh yes. अगर आप एक chauffeur driven car के लिए जा रहे हैं, which is packed and loaded with features, so this should be your take. As you could see, because there are captain seats, यहाँ पे सेंटर में जो आपको कप होल्डर्स या एक्स्ट्रा स्टोरेज मिलता है वो नहीं मिलेगा. इंस्टेड यू हैव योर एसी वेंट्स हियर. मिडिल सीट में आपको एसी वेंट मिल जाएगा. यहाँ पे 5 वोल्ट का चार्जर पॉइंट मिल जाएगा आपको. ऑल्सो डोर्स के अंदर यू कैन गेट सम स्टोरेज स्पेस विच इज गुड इनफ. ऑल्सो यहाँ पे इन्फिनिटी के स्पीकर मिल जाएंगे. नीचे के साइड पे आपको इन्फिनिटी के स्पीकर मिल जाएंगे. एंड I guess that's about it. Also, you get this amazing reading lamps if you want. So, this show feels good. यहाँ पे ये सीट जो है वो मैंने पूरी आगे कर दी है, but still it has quite a lot of space. मेरे पैर just touch हो रहे हैं. Now, मेरी हाइट के लिए this is something really amazing and not many cars are able to do this. मैं ये सीट अगर पूरी आगे ले आ पाता हूँ, तो फिर this car is definitely spacious. The cabin is definitely spacious. And now I'm pulling it back. Also, it is for you. You can recline your seats as per your wish. And see, you can relax the drive and enjoy the sun while you're at it. So, 10 on 10 on this feature कि MG का जो spaciousness है, वो MG Hector Plus में भी उन्होंने maintain किया है. Even though they have not increased the dimensions of the car, they have still maintained their roominess. So we are going to now check out how did they put in those third row seats. Now, before we go to the third row seats, we have to remember the third row, MG already brands it as the kids row or your pets row. So they are not branding it for the full size adult. And third row का जो entry है, which you can see, is from here in between. So ये entry point है for the third row. These seats don't tumble down totally. The entry point is from here. And now we are going to go for the third row. We are somehow, with God's grace, fitted into the third row of MG. जी हाँ, काफी fittings, काफी मुशक्कत के बाद मैं खुद यहाँ पे पैक हो चुका हूँ. Now as you can see, the first difference is कि ये seats जो है उनमें under thigh support की बात तो दूर की है. Because of the angle, the reclining angle of the seats, क्या हो जाता है कि मेरे पैर देखिए आप, ये ऊपर के एंगल की तरफ है. So this is not comfortable at all. ये सीट जो है वो पूरी आगे की साइड है. मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो इधर कोई नहीं बैठ पाने वाला है. On that note, let us understand कि ये सीट MG is not selling on the basis of a third row passenger seat. नहीं, they are saying that these seats are for teenager.
तो काफी यंग साइज के टीनेजर्स है, थोड़े छोटे साइज के, देन उनके लिए शायद ये कंफर्टेबल हो सकता है। बट जो भी ऑक्यूपेंट्स है इन सीट्स के, उनको भी, उनके कंफर्ट का भी MG ने ध्यान रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे AC वेंट्स विथ फैन एग्जॉस्ट कंट्रोल दिया हुआ है आपको, दोनों साइड पे वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस भी है एंड वहां पे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, अगेन 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाला। सो ये जो पीछे की साइड की जो बात है, इट इज डेफिनेटली नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। ऑल्सो जो पीछे का एंगल है, बैकरेस्ट का एंगल है, दैट इज क्वाइट वर्टिकल। सो एक छोटे से क्विक ट्रिप के लिए जाना हो तो माइट बी। और एक चीज जो मुझे थोड़ा ये लगता है वो है कि एंट्री टू द थर्ड रो is from between these two captain seats, so it could get a bit of a challenge in entering the third row. But yes, considering that they have not taken up an inch of extra space in the length of the car due to these seats and they have fitted this, so yes, they have done a good job here. Also यहाँ पे you can see the quarter window there. It is not much but still हाँ, आपको थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया से दूर आप जा सकते हैं because of this sunroof and this quarter glass. It is good enough for the kids or young adults जो यहाँ पे occupants रह सकते हैं। On that note, it's a wrap for the interiors of MG. Now let's see what is under the hood. You get similar engine options in Hector Plus as in Hector. MG Hector Plus provides you with 2-liter diesel manual transmission engine, 1.5-liter turbo petrol DCT automatic or manual transmission and 1.5-liter turbo hybrid engine जो manual transmission में आपको मिल जाएगा। इसके पावर एंड टॉर्क्स के फिगर आपके स्क्रीन के सामने है, so you can compare. So guys, we are going to take this beast for a ride. Let's start. Yes. Did you see that? जी हाँ, काफी सही पिकअप है इस कार का। Let's take it a bit further on the road. जी हाँ, now as you can see, we are going to cut corners here and बहुत बढ़िया रिफाइनमेंट है कार के हैंडलिंग में। I feel कि ये बम्प्स जो है वो कैप्टन सीट्स में थोड़े से फील होंगे, बट ऑन लोअर स्पीड्स और शॉफर ड्रिवन स्पीड्स इतना ज्यादा बम्प्स फील नहीं होंगे। एक और चीज जो आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आई एम ड्राइविंग ऑन अ रोड जिसके साइड में ही एक बड़ा हाईवे काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है, तो उधर काफी ट्रैफिक रहता है, बट द इंसुलेशन ऑफ कार इज नाइस। द पीपल आर प्लेइंग आउटसाइड, देयर आर व्हीकल्स हियर। नाउ वी आर एट अ बिट बम्पियर पैच ऑफ द रोड and you could see, yes, I can feel the bump but it is nice. झटका नहीं है, shock absorbers are good, the refinement is good, the insulation of the car is good, the response of the steering is nice. इतना massive car होने के बावजूद you don't feel the steering is heavy. हाँ, एक चीज है कि clutch थोड़ा सा hard है, but it is not that you will not get used to it. In a couple of drives, I guess you will get used to the clutch. अगर आपने Hector drive की हुई है, तो this is practically the same. There is no difference in driving of Hector and Hector Plus. Just one small thing is the reflection of the third row in your IRVM is the only difference. Judgment ले लो या आप driving experience ले लो. Hector is known for its handling and refinement, तो यहाँ पे drive is quite nice. It does get a bit rough around the corners and what do you call, वो punchiness नहीं रहेगा। इसका जो power transmission है वो काफी linear है। हाँ, ये काफी linearly power देता रहेगा आपको। So, but हाँ, you will not feel a lack of power anywhere in the car while overtaking someone or while going through a rough patch like we are going. This is giving me a good pickup, a good torque. हाँ, ये जो हमारे पास वेरिएंट है, that is a top variant 2-liter डीजल का इंजन आता है with 170 bhp and 350 Newton meters of torque. I hope
दिस वीडियो गिव यू सम वैल्यू एंड मैं अभिराज आपकी तरफ ये वीडियोस क्यों ले आ पाता हूँ? दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कंपनी कार जासूस. यस, कार जासूस इज एन एक्सटेंडेड सेलिंग आर्म ऑफ द डीलर. वी गेट यू द बेस्ट डील्स पॉसिबल विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड द डीलर. एंड आपको आपके पसंद की वेरिएंट, आपके पसंद की कार, आपके पसंद की कंपनी से मिलती है, बट एट द बेस्ट डील्स पॉसिबल. ऑल्सो वी गिव यू ऑल थिंग्स at one place. We offer you car loans, car insurance and new car sales and all these in best deals possible. जी हाँ, also आपको किसी भी कार के बारे में कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है रिगार्डिंग एनी वेरिएंट, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली. कम लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट एंड आवर एक्सपर्ट्स विल टॉक टू यू, exchange their ideas with you, their views. We also give our opinions. We also give car comparisons and ऐसे रिव्यू वीडियोस भी हम आपको देते हैं. एंड ये सारी की सारी सर्विसेज का जो हमारा प्रीमियम पैकेज है उसका कॉस्टिंग रहता है 0. जी हाँ, द कॉस्टिंग इज 0 रुपीज फॉर एवर. जी हाँ, हमारी सारी की सारी सर्विसेज आपके लिए बिल्कुल है मुफ्त. On that note, this is Abhiraj Kanetkar signing off. Hasta la vista. The sun is up and we need to go down. Take care. Bye bye.